Morning everyone, this is our second period here in this chapter 3, and the chapter 3 roles and function of a government. The name of the chapter is role and function of a government. Children, yesterday I taught you about meaning and need of the government. Okay, so what we have discussed in the last period I told you about various facilities and services, about various facilities and services which are given by our government, है ना. कई सारी facilities दी है, education, employment and so many. Okay, and the next one I told you about in the last period that resources are fairly distributed according to our capability. Government give our chance to do any type of business or any type of work in our India or apply in any institution for working. Okay, and the third one I told you about in the last period that relief material, है ना. ड्यूरिंग फेमाइन के समय पे, है ना, जब सूखा पड़ता है या अर्थक्वेक आती है ना, ऐसे कोई डिफ़िकल्टीज होती है तो गवर्नमेंट कैन हेल्प अस. ओके, ऑलवेज. एंड द नेक्स्ट पॉइंट, government enforce law and maintain law and order also. And the last period I told you कि government लॉ को एनफोर्स करती है, उसको लागू करवाती है लोगों में. ओके, देन आवर कंट्री मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. ओके, सी द नेक्स्ट वन, सेफ गार्ड ऑफ द बॉर्डर. ओके, मैंने बताया था आपको सोल्जर्स सैल्यूट एंड ऑल, है ना, कि आवर सोल्जर कैन प्रोटेक्ट अस इन एनी ways, है ना, in so many ways. Okay, and he sacrificed our life also for our security. See the next one, to maintain cardinal relation between other nation. Cardinal relation means a friendly relations. Okay, for what? For business and other deals also. Okay, now today's topic is children levels of government. Levels. Okay, first level status, that's Hana, that is the main. Okay, so here in this topic we are talking about levels of government. Levels of government. Level. Okay, so let's read out the para, then you can understood what it is given here. See, in order to perform all function efficiently, a government function at different level. In India, the government function at 3 level: national or central, state and local. Please underline these line children. National को central भी कहा जाता है, and the second level state, and the third level is the local. You know children, India is a very vast country. It is difficult to बहुत ही डिफ़िकल्ट जाता है इंडिया में कि उसके हर मेंटेनेंस को पर नज़र रखना, है ना, कैसे काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. इसलिए 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म की गई है. फर्स्ट है नेशनल, देन स्टेट, देन लोकल. ओके, नेशनल, स्टेट एंड लोकल, दीज आर द 3 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. सो व्हाट दे आर डूइंग, सी, the central government make law for entire country. Central government means the first government जिसको central government कहा गया. ओके, national level वाला जो है, ठीक है. ओके, the central government make law for the entire country. It is based in New Delhi. New Delhi में सारे decisions लिए जाते हैं, and it is apply for all over the country. All over the country में ये apply होता है. Clear children? The state government make law for a state. State से state का पता चलता है children. State government make law for the state. State के लिए states, you all know children, India is divided into so many states. Okay, तो state government can take decision for their states. Okay, हल अलग अलग states है तो अलग अलग states में states government है, they can make laws and enforce those law in their states. Okay, it is usually located in the capital of the state. Capital of the state means state का capital. Okay, like that. State के capital में decision make होते हैं. It can follow in all over the state. Okay,
Lastly, the local government function in a city, town or village. Local government, third level, okay, third level of the government can function in a city, town और विलेज. सिटी बड़ा सिटी होता है, टाउन सिटी से थोड़ा छोटा, और विलेज एज यू ऑल नो गांव को कहा जाता है. ठीक है. सो हियर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में मैंने आपको क्या बताया. अगेन आई रिवाइज दैट पोर्शन, दैट 3 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, नेशनल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट. नेशनल गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन फॉर ऑल ओवर द कंट्री, है ना. ऑल ओवर द कंट्री मीन्स ऑल इंडिया के लिए डिसीजन मेकिंग होती है. क्लियर. स्टेट गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन ऑन देयर ओन स्टेट, पूरे स्टेट में फॉलो होती है. और ये कहाँ डिसीजन लिया जाता है चिल्ड्रन? ऑन देयर कैपिटल सिटीज. Clear children. And the third level of the government, that is the local level of the local government, it take decision for village, towns and city. Understood children? Okay. Now let's move further. Our next topic is law and people. Laws and people. Here, what is the topic children? Laws. The constitution make laws, okay? And people, what are the relation between these two? Okay, laws and people. So let's read out this topic children. At each level of the governance, a government perform its function by making and enforcing laws. For example, in order to ensure the safety of the people on the road, there is a law that all people driving a car must wear their seat belt. Again I repeat this line children. At each level of the government, each level of the government means central, state and the local government. Okay, each level of the government, a government perform its function. Government, हर लेवल की गवर्नमेंट अपना फंक्शन परफॉर्म करती है बाय मेकिंग एंड एनफोर्सिंग लॉ. लॉ बनाती है और उनको एनफोर्स मतलब लागू करवाती है, चालू करवाती है ताकि लोग उसको फॉलो करें. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? एनफोर्स लॉ. फॉर एग्जाम्पल, ओके, देखो मैं क्या बता रही हूँ, फिर से बता रही हूँ. 3 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट कैन मेक लॉज एंड एनफोर्स लॉ. ओके, ये तीनों लेवल ऑफ द गवर्नमेंट लॉ बनाती है और उनको एनफोर्स करवाती है. सी फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द पीपल ऑन द रोड. जैसे रोड पर की सेफ्टी है ना, एवरीवन ट्रेवल, है ना, हर कोई ट्रेवल करता है ना. सो फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द पीपल ऑन द रोड, देयर इज अ लॉ दैट ऑल पीपल ड्राइविंग अ कार मस्ट वियर देयर सीट बेल्ट. है ना, क्या लॉ बनाया गया है रोड पर के लिए कि दोज हु ड्राइविंग अ कार, जो कार ड्राइव कर रहे हैं, दे मस्ट वियर सीट बेल्ट. है ना, कि उनको क्या करना है चिल्ड्रन? दे मस्ट वियर द सीट बेल्ट. सीट बेल्ट वियर करना है, सीट बेल्ट पहनना है, लगाना है. ओके, सी एज अ मीन्स टू मेक people obey this law, anybody caught violating the law is penalized. Okay, ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है ना, आप लोगों ने देखा होगा, है ना. इफ एनीवन कैन नॉट डू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी विच आर एनफोर्स्ड बाय आवर गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट कैन पेनलाइज दोज पीपल. है ना, सपोज मैं कार चलाती हूँ, मैंने सीट बेल्ट पहना ही नहीं है ना, तो क्या करेगा पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, ओके, वो मुझे पैनलाइज करेगा. अगर मैं पकड़ी गई तो मुझे पैनलाइज करेगा. 200 रुपीज़ फाइन, 400 रुपीज़ फाइन, ऐसे करके मुझे पैनलाइज करेगा. क्लियर चिल्ड्रन? मुझे पनिशमेंट मिलेगी कि मैंने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया. क्लियर चिल्ड्रन? सी द नेक्स्ट वन. The enforcement of law is important, as without the enforcement law would not be much use. See again what it is written. I repeat this line. The enforcement of law is important, as without the enforcement है ना. जैसे लॉ बना लिया गया, ओके, लॉ बना लिया एक, ठीक है, लेकिन उनको एनफोर्स करवाना है. एनफोर्स मीन्स
उसको लागू करवाना, उसको चालू करवाना, है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। लॉ तो हर कोई बना लेगा, लेकिन उसको पीपल्स के थ्रू, इंडिया के पीपल्स के थ्रू उसको फॉलो करवाना, एनफोर्स करवाना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यस, ओके। वुड नॉट बी मच यूज, अगर वो एनफोर्स नहीं हुआ, लागू नहीं करवाया, तो उसका कोई यूज़ है क्या? नो, है ना। सपोज गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया बट उसको एनफोर्स नहीं किया जा रहा बाय द पीपल ऑफ आवर इंडिया, है ना, इज देयर एनी यूज? नो, है ना, कि उसका एनफोर्स, उसको फॉलो करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो द पीपल ऑफ ए कंट्री ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन द एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। पीपल ऑफ आवर कंट्री, यू, है ना, योर मदर, फादर एंड ऑल, ओके। द पीपल ऑफ अ कंट्री ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल ऑफ इन द एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। एनफोर्समेंट मतलब हम, है ना, हमने लॉ को फॉलो किया तो वी आर द इम्पोर्टेंट। यस, है ना, इट इज़ इम्पोर्टेंट, है ना, ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं? लॉ तो बन गया, हमने फॉलो नहीं किया तो उसका क्या इम्पोर्टेंस? यस, अगर लॉ है तो पीपल फॉलो करेगा। यस, वही बोला जा रहा है कि जब तक हम उसको फॉलो नहीं करेंगे उसका इम्पोर्टेंस कैसे पता चलेगा? वो अब गवर्नमेंट जो भी लॉ बना रही है चिल्ड्रन, वो हमारे सेफ्टी के लिए ही बना रही है। जैसे रोड का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कार में सीट बेल्ट आपको पहनना है ना, लगाना है। अगर सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे और सपोज आपका एक्सीडेंट हो गया तो आपको कितनी इंजरी होगी, है ना। सीट बेल्ट आपको आपकी सीट से हिलाएगी नहीं तो आपको इंजरी कम होगी, है ना, शायद आप मेजर एक्सीडेंट से बच जाए। तो ये हमारे इम्पोर्टेंस के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए लॉ बनाया जा रहा है। यस, तो हमें फॉलो करना है ना, हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए ही। तो ये कहा गया है चिल्ड्रन इसमें, ओके। देखो, द पीपल ऑफ ए कंट्री ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल, हमने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन द एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। लॉ को चलाने के लिए हम मानते हैं तो हम ही सेफ रहते हैं। क्लियर? इफ द सिटीजन ऑफ ए कंट्री फील दैट a particular law is not being followed, they are entitled to go to the court, है ना। अगर पीपल ऑफ द कंट्री, उनको लगता है कि पर्टिकुलर लॉ एनफोर्स नहीं किया जा रहा है ना, लोग मान नहीं रहे हैं, तो दे कैन अप्लाई टू द कोर्ट, ओके। जैसे पर्टिकुलर किसी के लैंड पर कब्जा करना, इट इज़ क्राइम, है ना। सपोज मेरी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया, ओके, किसी ने मेरी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया, तो वो उसने लॉ तोड़ा, तो मैं क्या करूँगी? कोर्ट में अप्लाई करूँगी उसके खिलाफ कि ये तो क्राइम है, इसने कैसे किया। क्लियर? क्लियर, समझ में आ रहा है? अगेन आई रिपीट द लाइन चिल्ड्रन, सी द पीपल ऑफ ए कंट्री ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन द एनफोर्समेंट ऑफ लॉ इफ द सिटीजन ऑफ ए कंट्री फील दैट, if the citizen of a country feel that a particular law is not being followed, कि ज़मीन पर कब्जा करना क्राइम है, तो ये क्राइम कोई फॉलो कर रहा है ना, is not being followed, they are entitled to go to the court, तो मैं क्या करूँगी? सीधा कोर्ट में जाकर अप्लाई करूँगी, मतलब अपील करूँगी, ओके, कंप्लेन करूँगी, ओके, लाइक दैट। सो for example, the law of the country prohibits discrimination on the basis of caste, class or gender. Thus, if a person is discriminated on these grounds, they can go to the court to seek justice. Again, I repeat that line, children. For example, the law of the country. अब law, country का एक particular law, okay? If the law of the country prohibit डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास और जेंडर, है ना, कोई लॉ किसी पर्टिकुलर पर्सन के क्लास, कास्ट और जेंडर को लेकर उसको दूर कर रहा है ना, उसको अपनी सोसाइटी से दूर कर रहा है, अदर लोगों से दूर कर रहा है, तो क्या होगा? देखो, दस इफ अ पर्सन इज डिस्क्रिमिनेटेड, तो मैं डिस्क्रिमिनेट हो गई ना, है ना, किसी पर्टिकुलर लॉ के कारण लोग मुझे अलग समझ रहे हैं, अपने से डिफरेंट समझ रहे हैं, अपने से नीचा समझ रहे हैं, मुझे अपने बराबर दे ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? है ना, तो ये होगा इफ अ पर्सन इज डिस्क्रिमिनेटेड, तो मैं डिस्क्रिमिनेटेड हुई, है ना। इफ द पर्सन इज डिस्क्रिमिनेटेड ऑन दीज ग्राउंड, किन ग्राउंड? कास्ट, क्लास, जेंडर और द प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ों को लेकर मुझे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, मुझे अलग समझा जा रहा है, मुझे कुछ भी नहीं समझा जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है कि तुम किसी लायक ही नहीं हो, है ना, यू बिलोंग टू दिस कास्ट, लाइक दैट, है ना,
ऐसा करके मेरे साथ बिहेवियर हो रहा है किसी पर्टिकुलर लॉ के कारण, है ना, तो मैं क्या करूँगी, सी thus if a person is discriminated on these ground they can go to the court to seek justice। मैं कोर्ट जाऊंगी अपने जस्टिस के लिए, जस्टिस मतलब क्या चिल्ड्रन, न्याय के लिए मैं कोर्ट जाऊंगी। अंडरस्टूड चिल्ड्रन व्हाट इट इज गिवन हियर, लॉ एंड एनफोर्समेंट। लॉ एंड एनफोर्समेंट मैंने आपको क्या बताया कि लॉ एनफोर्स करवाती है गवर्नमेंट, जैसे रोड में हम अगर व्हीकल्स कार ड्राइविंग कर रहे हैं तो मस्ट वियर द सीट बेल्ट, क्यों, क्योंकि ये हमारी सेफ्टी के लिए है। इफ एनी लॉ, है ना, अगर कोई लॉ को ब्रेक कर रहा है या कोई लॉ हमें अदर सोसाइटी से डिस्क्रिमिनेट कर रहा है तो हम क्या करेंगे चिल्ड्रन, वी आर गो एंड अप्लाई टू द कोर्ट एंड कंप्लेन टू दोज पर्सन्स और अ ग्रुप ऑफ सोसाइटी। हम उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, ये हमारा हक है, ये हमारा राइट्स है। क्लियर चिल्ड्रन, तो यहाँ तक का हमारा टॉपिक होता है। दो टॉपिक मैंने आपको लिया चिल्ड्रन, लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, 3 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा हमने और लॉ एंड पीपल के बारे में पढ़ा। सो इफ़ यू अंडरस्टूड प्लीज़ रीड आउट दिस पैरा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ सी दिस वीडियो अगेन। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे चिल्ड्रन, टेक केयर।